Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we will discuss about bunching process. We have already discussed about velocity modulation in two cavity klystron. Now bunching process in two cavity klystron. So in the current lecture we will discuss about bunching process. So, bunching process, this is actually the Applegate diagram. A diagram between time and distance for two cavity klystron is known as Applegate diagram. So, यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाया है जिसको हम Applegate डायग्राम बोलते हैं. ये जो डायग्राम है ये टाइम एंड डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है जिसको हमने Applegate डायग्राम कहा है. And this is actually a bunching center. This figure shows the Applegate diagram representing the bunching of electrons moving with different velocities. तो ये हमारा Applegate डायग्राम है जिसमें यहाँ पर हमने डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करते हुए बंचिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है. These electrons move with slower velocity, these with same velocity, and these are move with faster velocity. So, ये जो पॉइंट 3 है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. 3 से जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वेलोसिटी स्लो है जबकि 3 के बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वेलोसिटी फास्ट है. This is the graph between distance and time. So, the graph between distance and time is known as Applegate diagram. Here, the electrons traveling inside the tube under the absence of external fields acts as the bunching center. So, ट्यूब के अंदर एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दे एक्ट्स एज द बंचिंग सेंटर. तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे बंचिंग सेंटर की तरह बिहेव करते हैं. इट इज फाउंड दैट once the electron leave the buncher cavity, they drift with different velocities along the drift space between the two cavities. तो जैसे इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी से क्रॉस होते हैं ये बंचर कैविटी को लीव करते हैं then they move with different velocities along the drift space between the two cavities. So जो two cavity klystron में हमने दो कैविटीज दिखाई थी उन दोनों कैविटीज के बीच का जो ड्रिफ्ट स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं. नाउ दिस वाज आवर two cavity klystron amplifier. This is buncher cavity and this is catcher cavity. So buncher cavity and catcher cavity का बीच का जो ड्रिफ्ट स्पेस है यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं. Those electrons that leave the buncher cavity with higher velocities, that is V is greater than V naught, catch up with those that left earlier with slower velocities, that is V is less than V naught. तो जो इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी को V is greater than V naught means हाई वेलोसिटी से लीव करते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो बंचर कैविटी को इससे पहले छोड़ चुके हैं मीन्स जिनकी वेलोसिटी V is less than V naught है उसको वे कैच कर लेते हैं. नाउ एप्लीकेट डायग्राम अभी मैंने दिखाया था वहां पर इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 3 4 5 से डिनोट किए थे. सो इस तरह से हमारा डायग्राम था. यहां पर हमने एक पॉइंट लिया था जिसको हमने बंचिंग सेंटर बोला था एंड इस तरह से हमने डिफरेंट लाइंस शो की थी.
यहां पर 1, 2 एंड 3 एंड हियर 4 एंड 5 इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट किया था. सो द इलेक्ट्रॉन्स 1 to 3 leave the buncher cavity during the accelerating phase, that is negative half cycle of RF voltage. So जो इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक हैं वे बंचर कैविटी को एक्सेलरेटिंग फेज या RF वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल में क्रॉस करते हैं. तो जो उनकी वेलोसिटी है, that velocity is less than v naught, and the electrons 3 to 5 leave the buncher cavity during the accelerating phase of RF voltage across the gap with velocity v is greater than v naught. और ये एक्सेलरेटिंग फेज कौन सा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल का. यहां पर हमारा एक्सेलरेटिंग फेज नेगेटिव हाफ साइकिल था. मींस जो 3 to 5 है वे बंचर कैविटी को आरएफ वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्रॉस करते हैं, एंड जो इनकी वेलोसिटी है, देयर वेलोसिटी v is greater than v naught, and these electrons catch up with those electrons from 1 to 3 which left earlier with less velocity than v naught. So जो इलेक्ट्रॉन्स 3 से 5 हैं वे उन इलेक्ट्रॉन्स को भी कैच कर लेते हैं जो कि इससे पहले स्लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहे थे. मींस 3 to 5 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो 1 से 3 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी कैच कर लेते हैं, एंड 1 से 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बंचर कैविटी को आरएफ वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल में क्रॉस करते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन 3 से 5 हैं वे आरएफ वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में बंचर कैविटी से निकलते हैं, एंड सारे इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर बंचर सेंटर पर पहुंचते हैं. ये बंचिंग सेंटर पर पहुंचते हैं. इन दिस वे they form an electron bunch at distance delta L from buncher cavity. So buncher cavity से delta L distance पर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक बंच फॉर्म करते हैं जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बंच कहा है. It is shown by intersecting bundle of lines marked B. So ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा L डिस्टेंस पर बंचर कैविटी से इलेक्ट्रॉन बंच फॉर्म करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ये जो बंच है इसको हमने पॉइंट बी से मार्क किया है जहां पर सारे बंडल्स इंटरसेक्ट होते हैं. ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं. सो दिस वाज आवर डायग्राम, एंड दिस इज आवर बंचिंग सेंटर वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मीट टुगेदर, and it is at a distance delta L from the buncher grid, that is from z equal to 0. The bunching process repeats once every cycle, and electrons 1 through 5 over one half of the cycle come together in a form of bunch at a definite drift distance from the buncher ग्रिड. सो ये जो हमारा बंचिंग प्रोसेस है इट रिपीट्स वंस एवरी साइकिल. सो हर साइकिल में ये रिपीट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स 1 से 5 हैं दे कम टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ बंच एट ए डेफिनेट ड्रिफ्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बंचर ग्रिड. सो बंचर ग्रिड से एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट डिस्टेंस पर ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे मिलते हैं, और इस पॉइंट को हमने बंचिंग सेंटर कहा है. द मैक्सिमम बंचिंग शुड ऑकर एट अप्रोक्सीमेट मिडवे बिटवीन द कैचर कैविटी. तो मैक्सिमम बंचिंग कहां मिलेगी? कैचर कैविटी के मिडवे पर.
At this distance, the catcher cavity grid should be located in order for the electron bunch to induce microwave field in the catcher cavity. Now, qualitative analysis of electron bunching, that is RF current. So electron bunching का क्वालिटेटिव एनालिसिस लेते हैं, यहां हम RF करंट की वैल्यू निकालते हैं. If the net charge leaving the buncher cavity over an infinitesimal interval of time dt1 is I naught dt1. So I naught dt1 क्या हो जाएगा? चार्ज होगा, क्योंकि I हमारा करंट है. करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, और dt1 भी हमारा टाइम है. सो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स ये जो मिलेगा ये एक्चुअल में चार्ज होगा. और कौन सा चार्ज है? This is the net charge leaving the buncher cavity over an infinitesimal interval of time dt1. So infinitesimal interval of time dt1 में buncher cavity से जो net charge निकलता है उसको हमने I naught dt1 कहा है. And the charge arrives at the catcher cavity gap is I naught dt2. And catcher cavity gap पर जो चार्ज पहुंचता है उसको हमने I naught dt2 कहा है. सो बंचर कैविटी से जो चार्ज निकलेगा वो हमारे ये है, एंड कैचर कैविटी गैप पर जो चार्ज पहुंचेगा वो हमारे ये है. एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दीज टू चार्जेस विल बी इक्वल. सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग द नेट चार्ज लीविंग द बंचर कैविटी, बंचर कैविटी से जो नेट चार्ज निकल रहा है उसकी वैल्यू द नेट चार्ज अराइव्स एट द कैचर गैप. सो कैचर गैप पर या कैचर कैविटी गैप पर जो नेट चार्ज पहुंचता है उसके बराबर होगी. सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, I naught dt1 should be equal to I2 dt2. So I naught dt1 is equal to I2 dt2. और यहां से अगर आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो I2 क्या आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू I naught dt1 अपॉन dt2. सो I2 इक्वल टू I naught dt1 अपॉन dt2. एंड हियर I2 इज द करंट एट द कैचर गैप. सो कैचर गैप पर जो करंट है वो हमारा I2, एंड dt2 is the arrival interval of time, and arrival interval of time हमारा dt2 है. Also here I naught is DC current. Now I2 equal to I naught dt1 upon dt2, ये अभी हमने निकाला था. Here T2 is the arrival time for an electron for which departure time is T1. तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए डिपार्चर टाइम हमारा T1 था, उस इलेक्ट्रॉन का अराइवल टाइम T2 है. तो यहां पर ये जो T2 है, दिस T2 इज द अराइवल टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच डिपार्चर टाइम इज T1. सो T2 इक्वल टू T1 प्लस L अपॉन V, बट V इक्वल टू V naught into 1 plus half alpha beta sin omega T1. So V की वैल्यू हमारी ये होती है जो हमने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर के अंदर निकाला था. सो V इक्वल टू V naught into 1 plus half alpha beta sin omega T1, and here beta is equal to sin omega tau g upon 2 divided by omega tau g upon 2, and this is equal to sin theta g by 2 डिवाइडेड बाय थीटा जी बाय 2. सो बीटा की वैल्यू हमारी ये थी, एंड बीटा वाज एक्चुअली बीम कपलिंग कोफिशिएंट. सो बीम कपलिंग कोफिशिएंट हमारा बीटा था, एंड द वैल्यू ऑफ V इज V naught into 1 plus half alpha beta sin omega T1. तो ये जो V की वैल्यू है ये आप यहां पर पुट कर दो. सो T2 इक्वल टू T1 प्लस L अपॉन
V naught into 1 plus half alpha beta sine omega t1. Now, by using binomial expansion, 1 plus x whole raised to minus 1 is approximately 1 minus x when x is very much less than 1. So, अगर x की वैल्यू 1 के कंपेरिजन में बहुत कम है तो 1 plus x whole raised to minus 1 की वैल्यू approximately 1 minus x होती है. It means 1 upon 1 plus half alpha beta sine omega t1 will be equal to 1 minus half alpha beta sine of omega t1. So 1 upon 1 plus half alpha beta sine omega t1 को हम ये लिख देंगे. Therefore t2 equal to t1 plus L upon v naught as it is और 1 upon 1 plus half alpha beta sin omega t1 हो गया 1 minus half alpha beta sin omega t1. Let L upon v naught is t naught and this t naught is DC transit time. So L upon v naught को हम t naught लिख देते हैं जो एक्चुअल में हमारा DC transit time है. Therefore t2 equal to t1 plus t naught into 1 minus half alpha beta sin omega t1. Now, if we differentiate this equation then, so अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा dt2 is equal to dt1 plus t naught 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस हाफ अल्फा बीटा एंड साइन ओमेगा t1 का हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t1. So dt2 equal to dt1 minus half alpha beta ओमेगा t naught cos ओमेगा t1 dt1. तो ये कैसे आ गया t1 का हो गया dt1 प्लस t naught हमारा एज इट इज 1 का 0 माइनस हाफ अल्फा बीटा एज इट इज साइन ओमेगा t1 का करोगे सो cos ओमेगा t1 एंड ओमेगा t1 का हो जाएगा ओमेगा. सो डिफरेंशियल ऑफ दिस विल बी dt2 इक्वल टू dt1 माइनस हाफ अल्फा बीटा ओमेगा t naught. So alpha beta omega t naught cos omega t1 dt1. So इसका डिफरेंशियल करने पर हमको ये मिल जाता है. Now dt2 is equal to dt1 minus half alpha beta omega t naught cos omega t1 into dt1. ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी. Here omega t naught is equal to theta naught and this is the DC transit angle. So DC transit angle हमारा theta naught है जो कि ओमेगा t naught है. So यहां पर हम थीटा नॉट पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा dt2 इक्वल टू dt1 माइनस हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट cos ओमेगा t1 dt1. अब यहां पर आप dt1 कॉमन ले लो. तो जैसे dt1 कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट cos ओमेगा t1. So this is the value of dt2 and therefore dt1 upon dt2 equal to 1 upon 1 minus half alpha beta theta naught cos omega t1. तो पहले आपने यहां पर t1 कॉमन लिया तो dt2 इक्वल टू dt1 इंटू 1 माइनस हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट cos ओमेगा t1 हो गया. और यहां से अगर dt1 अपॉन dt2 निकालोगे तो वो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट cos ओमेगा t1. बट I2 की वैल्यू I नॉट dt1 अपॉन dt2 थी. सो ये जो dt1 अपॉन dt2 हमने निकाला है इसको यहां पर रखो. सो I2 क्या आ जाएगा I2 इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट cos ओमेगा t1. Here
half alpha beta theta naught is the dimensionless quantity known as bunching parameter and it is represented by x. तो ये जो हमारा हाफ अल्फा बीटा थीटा नॉट है ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम बंचिंग पैरामीटर कहते हैं और इसको x से डिनोट करते हैं. सो I2 इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस x cos ओमेगा t1. So I2 equal to I naught divided by 1 minus x cos omega t1 और इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 1 minus x cos omega t1 पावर -1 क्या हो जाएगा 1 plus x cos of omega t1. This is by using binomial expansion. So binomial expansion से पावर हमारी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. So 1 plus x cos omega t1 हो जाएगा. So I2 equal to I naught into 1 plus x cos omega t1. Now I2 की वैल्यू हमने ये निकाली है. So on expanding I2 in Fourier form as, अब ये जो हमारा I2 है इसको हम T2 की टर्म्स में Fourier एक्सपांशन लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा I2 equal to A naught plus sigma n equal to 1 to infinitive A n cos n omega t2 plus B n sin n omega t2. And here A naught, A n and B n are Fourier coefficient. So A naught, A n and B n हमारे Fourier coefficient हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी A naught equal to 1 upon 2 pi integration minus pi to pi I2 d ओमेगा t2 और इसकी वैल्यू आती है I naught and an equal to 1 upon pi integration minus pi to pi I2 cos n omega t2 d omega t2 और इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है twice I naught jn nx cos n theta naught and bn की वैल्यू 1 upon pi integration minus pi to pi I2 sin n ओमेगा t2 d ओमेगा t2 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी twice I naught jn nx sin n theta naught. So a naught, an and bn तीनों की वैल्यूज हमारे पास में है. a naught हमारा ये है, an की वैल्यू ये एंड bn की वैल्यू हमारी ये है. And here jn nx is actually nth order Bessel function of first kind. So first kind का जो nth order Bessel function है उसको हमने यहां पर jn nx लिखा है. Now I2 हमारा ये था, इसके अंदर a नॉट की वैल्यू I नॉट, an हमारा ये था एंड bn की वैल्यू ये थी. अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पर रखूं सो I2 क्या हो जाएगा ये हमारा हो गया I नॉट. सो I नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव cos n ओमेगा t2 एज इट इज sin n ओमेगा t2 एज इट इज an की जगह आ गया ये. सो ट्वाइस I नॉट jn nx cos n थीटा नॉट. सो ट्वाइस I नॉट jn nx हमने कॉमन ले लिया है क्योंकि an में भी है और bn में भी है. तो दोनों के अंदर ये वैल्यू है इसलिए इसको हमने कॉमन ले लिया. सो ब्रैकेट में क्या आ गया cos n थीटा नॉट cos n ओमेगा t2 प्लस sin n थीटा नॉट sin n ओमेगा t2. अब यहां पर ये क्या हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b और वो क्या हो जाएगा cos a माइनस b. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos ऑफ n ओमेगा t2 माइनस n थीटा नॉट और दिस विल बी cos n omega t2 minus theta naught. So I2 equal to I naught plus sigma n equal to 1 to infinitive twice I naught jn nx cos n omega t2 minus theta naught. And this is known as beam current. So beam current I2 की वैल्यू I naught plus sigma n equal to 1 to infinitive twice I naught jn nx cos n
ओमेगा T2 माइनस थीटा नॉट होगी। The fundamental component of the beam current at frequency of the input gap n equal to 1 is, so अगर हम इनपुट गैप फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 पर बीम करंट का अगर फंडामेंटल कंपोनेंट लें तो वो क्या होगा, यहां पर आप n की वैल्यू 1 कर दो, सो IF इक्वल टू ट्वाइस I नॉट J1 x cos omega T2 minus theta naught. So fundamental components of beam current at frequency of the input gap n equal to 1 is IF, और इसकी वैल्यू आ गई ट्वाइस I नॉट J1 x cos omega T2 minus theta naught। तो हमने यहां पर n की वैल्यू 1 कर दी है जिससे कि IF की वैल्यू को मिल जाए, and this is equal to twice I naught J1 x sin omega T2 plus pi by 2 minus theta naught। सो साइन के टर्म्स में लिखोगे तो वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन इज 1, सो IF की मैक्सिमम वैल्यू, ये IF का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ट्वाइस I नॉट J1 x and magnitude of IF is equal to maximum value of magnitude IF at x equal to 1.841। सो अगर x की वैल्यू 1.841 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ IF हमारा मैक्सिमम होगा। नाउ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। IF की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी, दिस इज एक्चुअली द बीम करंट एट द कैचर कैविटी। सो कैचर कैविटी पर जो बीम करंट है उसकी वैल्यू हमारी ये है, ड्यू टू फाइनाइट ट्रांजिट टाइम ऑफ द बीम थ्रू द कैचर कैविटी गैप द इफेक्टिव बीम करंट इज रिड्यूस्ड बाय द बीम कपलिंग कोएफिशिएंट बीटा। सो कैचर कैविटी गैप के थ्रू बीम का फाइनाइट ट्रांजिट टाइम होता है और इसकी वजह से बीम करंट की इफेक्टिव वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस कैसे होगी, इट इज रिड्यूस्ड बाय द बीम कपलिंग कोएफिशिएंट बीटा। सो बीम कपलिंग कोएफिशिएंट बीटा से ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, देयरफॉर IF इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा I नॉट J1 x cos ओमेगा T2 माइनस थीटा नॉट। सो इस वैल्यू की जगह हमको जो वैल्यू मिलेगी IF की वो हमारी ये होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द बीम करंट इज। अब बीम करंट के फंडामेंटल कंपोनेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ IF इक्वल टू ट्वाइस बीटा I नॉट J1 x, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ IF इज ट्वाइस बीटा I नॉट J1 x। द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कैचर गैप वोल्टेज इज V2। सो कैचर गैप वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट हमारा V2 है। सो अब आप पावर की वैल्यू निकाल सकते हो या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो। द आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू द कैचर गैप एंड लोड इज। अब लोड को जो आउटपुट पावर मिल रही है उसकी वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, IF का मैग्नीट्यूड हमने ये निकाला था, एंड पावर हमारी V इंटू I होती है। अब I की वैल्यू आपके पास में है, V की वैल्यू V2 थी, सो P आउट इक्वल टू ट्वाइस बीटा I नॉट J1 x अपॉन रूट 2 इंटू V2 अपॉन रूट 2। तो यहां पर हमने RMS वैल्यू ले ली है, तो P आउट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। नाउ रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो आउटपुट पावर क्या आ जाएगी, बीटा I नॉट J1 x इंटू V2। सो P आउट इक्वल टू V2 बीटा I नॉट J1 x।
नाउ एफिशिएंसी ऑफ क्लिस्ट्रॉन। अब क्लिस्ट्रॉन की एफिशिएंसी मींस ईटा की वैल्यू निकालो। सो ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारी ये है एंड इनपुट पावर वी नॉट इंटू आई नॉट है, तो आप इसको वी नॉट आई नॉट से डिवाइड कर दो। सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो ईटा क्या आ जाएगा, V2 अपॉन वी नॉट बीटा J1X। सो ईटा इक्वल टू V2 बीटा I नॉट J1X अपॉन वी नॉट आई नॉट से आई नॉट कैंसिल किया। सो ईटा क्या हो गया, V2 अपॉन वी नॉट बीटा J1X। So V2 upon V naught beta J1X. So this is the value of eta. For perfect beam coupling beta equal to 1. So perfect beam coupling के लिए beta की वैल्यू हमारी 1 होगी। So eta equal to V2 upon V naught J1X. So perfect beam coupling के लिए बीटा हम 1 कर देते हैं, इसलिए eta आ जाएगा V2 upon V naught J1X। नाउ ईटा की वैल्यू हमने ये निकाली है। When x equal to 1.841 then J1x is 0.582। so J1x की वैल्यू आप 0.582 रख दो। so ईटा क्या हो जाएगा, ईटा मैक्सिमम इक्वल टू V2 अपॉन V नॉट इंटू 0.582 when V2 tends to V नॉट। so अगर V2 tends to V नॉट है देन V2 अपॉन V नॉट tends to 1, और जैसे ये 1 हो जाएगा ईटा मैक्सिमम की वैल्यू 0.582 या 58.2% आ जाएगी। Thus the maximum electronic efficiency is about 58%। so maximum electronic efficiency की वैल्यू 58% होगी। Since the efficiency is a function of beta and beta is a function of theta g, तो एफिशिएंसी हमारा बीटा का फंक्शन है एंड बीटा हमारा थीटा जी का फंक्शन है। सो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी विथ ट्रांजिट एंगल थीटा जी विल बी अकॉर्डिंग टू फिगर। तो अगर हम ट्रांजिट एंगल थीटा जी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी ईटा का वेरिएशन लें तो वेरिएशन हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन कैचर गैप ट्रांजिट एंगल थीटा जी एंड ईटा मैक्सिमम इन परसेंटेज। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी 58.2% है। सो वेरिएशन हमारा इस टाइप से आएगा। सो हियर वी एंड आवर सेशन। इन द करेंट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द bunching process. So goodbye.